So hello class 12, 11th. I am going to take up few problems of miscellaneous of chapter 5 which you people have given me. So question number 17 to 20 I am taking up in this video. So listen to the questions. This is, if you see from your book, question number 17 is if alpha and beta are different complex numbers with beta's mod is given 1, and then you have to find this value of this beta. This is beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta and whole mod. This is the question you have to find. This is the expression whose value you have to find out. Got it? Now for that, what do we do here? Is better, he has given mod of beta, you are given 1. He said if alpha and beta are different complex numbers, then you have to find the value of this thing. So since alpha and beta are given different complex numbers, so that's why I have taken alpha को हमने ले लिया a plus I आयटा b और बीटा को कुछ और complex number let x plus आयटा y. Now mod of beta अगर you have to find out, तो what do? You know how to find out the mod under root of x square plus y square, but it is given this is equal to 1. It means what? This is equal to 1. Squaring it means value of this is 1. You can keep it in your mind or keep it as number 1. Now let's start with the putting the things in the expression. P beta minus alpha I have written here. Minus alpha था तो sign change हो गया यहाँ का. Then 1 minus alpha conjugate. Alpha we have taken as a plus ib, तो conjugate क्या होगा? A minus iota b. So we have written it here. X plus iota y. Now यहाँ से बेटा हमने iota वाले अलग कर दिए terms, so it becomes this and without iota terms are there. Now these two brackets are also multiplied, and after that we again have separated this without iota terms here, and with iota terms this is iota and bx minus ay iota के साथ था वो separate कर दिया. Now see here, this becomes x. now this is mod, but you know z1 z2 का अगर इकट्ठा mod दिया बेटा, z1 upon z2 का mod actually is equal to what? z1 mod upon z2 mod. सो डैट्स वाई, क्योंकि ये इकट्ठा मॉड था तो मैंने सेपरेट दोनों का मॉड कर दिया बेटा. इसका न्यूमरेटर का मॉड अलग से, डिनोमिनेटर का मॉड अलग से. नो जब इसका मॉड ऑफ फाइंड आउट करोगे तो फिर वही करोगे अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. सिमिलरली जब इसका मॉड करोगे तो फिर वही करोगे होल अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. सो आई हैव डन इट लाइक दिस हियर ऑन द नेक्स्ट पेज. सो दिस आई हैव शोन यू. दिस इज मॉड्स था तो मॉड थे तो हमने ये कर दिया जो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट जस्ट बिफोर. सो दिस आफ्टर दिस वी हैव ओपनड इट. नीचे वाला भी ओपन कर दिया. यहाँ पे अब आप a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला का होल स्क्वायर. इफ़ यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दिस यू हैव डन इन योर 9th क्लास ऑल्सो. दिस इज वॉट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बेटे. तो अगर यहाँ पे कोई माइनस है तो आप यहाँ पे वो माइनस लगाओगे. लाइक यहाँ पे था दिस इज बी टर्म इज विद माइनस साइन, सी टर्म इज विद माइनस साइन, तो जहाँ पे दोनों बी सी आएंगे तो माइनस माइनस उनके कट जाएंगे. अगर एक बी सी में से एक टर्म आ रहा है बी, उसका माइनस लग के यहाँ माइनस हो जाएगा. सी ए में से एक सी में माइनस है तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा. सो यूजिंग दैट कंसेप्ट आई हैव ओपनड इट. ऊपर वाला भी ओपन करा, नीचे वाला भी ओपन करा बेटा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द कैलकुलेशन साइड बाय साइड. नाउ सी हियर, after this what I have done is putting the value of x square plus y square 1. जहाँ जहाँ मेरे को न्यूमरेटर में x square plus y square था बेटा हमने उसको 1 डाल दिया. बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज वी हैव केप्ट. नीचे भी हमने इफ़ यू सी कैलकुलेशन दिस माइनस 2bxa एंड प्लस 2bxa तो कट ही गया. तो दिस इज बाकी जहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर था उनको इकट्ठा कर दिया. दिस बिकम्स हेयर एंड दिस अगेन इज वॉट 1. This is 1, so 1 plus a square plus b square minus 2x minus 2by we are left in the denominator. If you see numerator and denominator is exactly same, so both will be cancelled, so answer will be 1. It means what? The expression this is equal to 1. So this is equal to 1. इसी की value find out करना, this is equal to 1. Now come to question number 18. He said find number of non-zero integral solutions of this. Now it means actually we have to solve this equation. This is mod of this 1 minus iota is a complex number. उसका mod लेना तो हमने ये ले लिया उसका mod. पावर x we have kept it like this. ये चेक करो तो it becomes √2 raised to power x. नो हमने दोनों बेसिस का बेसिस सेम करने के लिए what do we do? इसको भी √2 लिख देंगे बेटा, तो it becomes √2 का स्क्वायर
और x. Now bases are same. Whenever bases are same, powers will be equated. तो equate कर दिया x is equal to 2x. बट यहाँ से आप x को x से कटिंग नहीं करोगे, बिकॉज अगर x को x से कटिंग कर दी तो फिर आपका x निकलेगा ही नहीं. सो व्हाट डू वी डू, 2x माइनस x या फिर करा और इज इक्वल टू 0. So from here 2x minus x is what, x, so x is equal to 0. But he said non-zero integral solution, so there is no non-zero integral solution of this equation. So x is equal to, the only solution is x is equal to 0. So this x is equal to 0 is the only solution. Now come to your 19th question. He said this is given like this in the question, if this is equal to this, you have to prove this. एंड नाउ सी बेटा, अगर अब मैं इस सब ना भी देखूं, बट अगर आप इसको चेक करो तो ये क्या है, इसका मॉडुलस ही है, इसी का ही मॉडुलस है. इसका मतलब मेरे को मॉडुलस अगर दोनों साइड ले लें तो इट विल हेल्प मी टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ 1. सो वी हैव टेकन इट लाइक दिस. अब मॉडुलस में भी बेटा ये भी अगर सबका मॉडुलस इकट्ठा है तो वी कैन सेपरेट दैम ऑल्सो. सबके अलग अलग से मॉडुलस वी कैन टेक. सो इसका मॉडुलस तो डायरेक्ट यू गेट अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका मॉडुलस इज अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज अंडरूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सोन. तो बस क्योंकि हमने ये प्रूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस, क्योंकि सबके ऊपर रूट था, सबसे हट जाएगा, ऑन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर रूट हट जाएगा. सो फाइनली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट अ रिजल्ट विच दिस रिजल्ट यू विल गेट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. ही सेड इफ दिस इज गिवन देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट मतलब सबसे छोटी पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू ऑफ m. ज़्यादा भी निकल, बड़ी भी हो सकती है, बट आपने सबसे छोटी इंटेग्रल वैल्यू निकालनी है m की. नो अगेन सी m इज गिवन हेयर, सो दिस इज कम्प्लेक्स नंबर ओवर कम्प्लेक्स. नीचे हमें नीचे तो हमने नीचे वाले को रैशनलाइज कर दिया बेटा. यहाँ पे ऑन रैशनलाइजिंग यू कैन सी 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वी हैव अप्लाइड है. और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 रहा. नो दिस बिकम्स दिस एंड फाइनली वी गॉट 1 माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली वी गॉट दिस. तो आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1. अब सी है बेटे, आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1. यू कैन, अब आपको मैंने यहाँ समझा, आइटा तो क्या होता है रूट माइनस 1, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1. तो किसकी वैल्यू होएगी कि 1, आई वॉन्ट 1 हेयर. सो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती हूँ तो व्हाट डज इट बिकम, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर. सो व्हाट डज इट बिकम, आइटा 4 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स m शुड बी 4. सो आइटा m इज इक्वल टू 1, तो 1 तो तभी पॉसिबल है सबसे छोटी वैल्यू. ऐसे तो आप कोई और वैल्यू भी डालोगे m की तो आएगा 1, बट लीस्ट सबसे छोटी कौन सी वैल्यू m की होगी जिससे आंसर यू विल गेट 1 हेयर. सो m इज इक्वल टू 4. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल दिस ऑल्सो हेयर, ऑल्सो आई हैव डन इट फॉर यू दिस ऑल्सो. नाउ नोट वन थिंग बेटर. After this, I am going to upload one more video of exercise 5.4. Listen to it carefully. Your 5.4 is your supplementary exercise given at the back of your book after answers. Answers के बाद आपको वो exercise दी हुई है. उसमें एक concept है square root of complex numbers that I am going to discuss in the next video.